हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है एंजल इस सीजन में किसी को दौलत से मालामाल करने वाला है। अगर वो आप हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 लोगों से हाई फाई करें, 3 लोगों से हाई बोले, खुदावन तुझे बरकतों से मालामाल करना। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ प्रीस्टहुड, कहानत की क्या ताकत है। सादा लफ्जों में कि आपकी लाइफ में मैन ऑफ गॉड की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंट है, या क्या एक मैन ऑफ गॉड के पास डायमेंशन है आपको बरकत देने के लिए। आज की सर्विस आपकी सिचुएशन को चेंज करने वाली है। आमीन 2 लोगों का है। आए हम देखेंगे चंद आयतें, द पावर ऑफ प्रीस्टहुड, कहानत की ताकत। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाप और उसकी 6ठी आयत। यस, द पावर ऑफ प्रीस्टहुड, कहानत की क्या ताकत है। कहानत आज देखेंगे, कहानत क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, और कहानत आज हमारे लिए क्या कर सकती है। यस, द पावर ऑफ प्रीस्टहुड। यस, हमको एक बादशाही भी, और हमको, किसको? अपने पे उंगली रखें। किसको? आपके पड़ोसी को। और हमको एक बादशाही भी, और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। आपको खुदा ने क्या बनाया है? बादशाह। और क्या बनाया है? काहिन। कितनी चीजें बने हैं आप? इंग्लिश में पढ़ेंगे। और He hath made us kings. क्या बनाया है? इंग्लिश में बोले किंग्स एंड प्रीस्ट अनटू द लॉर्ड। खुदा ने आपको किंग्स और प्रीस्ट का, यानी काहिन और बादशाह का ऑफिस, रैंक, ओहदा, ग्रेस नवाजी है। यस्सु के सलीब पर जान देने से आपको सिर्फ मारूसी गुनाहों से रिहाई नहीं मिली, एडिशन में खुदावन यस्सु के ब्लड से, उसके सलीब पर आपके कफारे से आप और मैं किंग और प्रीस्ट का रैंक भी रिसीव किया। हमने जान देने से हमें मारूसी गुनाह से, गुनाह के जुए से, तारीकी से रिहाई मिली है, निजात मिली है। पर एडिशन में उस लहू से, उस कफारे से, उस सैक्रिफाइस से जो उसने कलवरी की सलीब पर दिया, हमें उसने किंगशिप और प्रीस्टहुड दी है, यानी बादशाह होने का और काहिन होने का हक दिया है। आज की मीटिंग में, आज के कलाम से आप देखेंगे कि उसने निजात के साथ आपको बादशाह और काहिन होने का हक क्यों बख्शा है। जब तक आपको कहानत का और बादशाहत का फंक्शन नहीं पता, आप बहुत सारी बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते। पर आज सुबह आपके लिए गुड न्यूज ये है
کہ وہ مسٹری میں آپ پر ڈیمسٹیفائی کرنے والا ہوں, اور جب وہ مکاشفہ کھولوں گا آپ برکتوں سے مالا مال جائیں گے. ایک اور آیت پڑھیں گے, مکاشفہ 5 باب اس کی 10ویں آیت. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا, اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. کدھر بادشاہی کرنی ہے آپ نے؟ بادشاہ پہلی آیت میں, یہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے, اولڈ نہیں ہے. بلیور کے, ایماندار کے 3 عہدے ہیں ہر ایماندار کے لیے. ہر ایماندار کے لیے 3 آفیسز ہیں, 3 رینکس ہیں جو ہر ایماندار حاصل کر سکتا ہے. جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, نمبر 1. دوسرا, آپ سب پریسٹ ہیں, کاہن ہیں, اور آپ سب کنگز اینڈ کوئنز ہیں. آمین کے بعد بیماروں والی ہیں. ہاللیلویا. میں سلولی جاؤں گا. تو یہاں پر بھی بات کو جب 2 سے زیادہ آیتیں تصدیق کریں, وہ کوئی تعلیم, کوئی ڈاکٹرائن بن سکتی ہے. جب ایک آیت پر مکاشفہ ہو یا ایک آیت کی تفصیل ہو, وہ کوئی تعلیم یا کوئی ڈاکٹرائن نہیں بنتی. تعلیم اور ڈاکٹرائن تب بنتی ہے جب ایک سے زیادہ آیات نیو اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک ہی بات کی تصدیق کرے. تو میں نے دوسری بھی آیت پڑھی تو اس میں بھی کیا لکھا ہے کہ خداوند نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ بولے پریسٹ بنایا اور کنگ بنایا. کتنے کنگ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ بہت زیادہ کنگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ کوئنز بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے لیے زوردار تعلیم جاتے. اور یہاں اس آیت میں ایڈیشن کیا ہے کہ وی شیل رین آن دا ارتھ. کہاں حکومت کریں گے؟ ہم زمین پر حکومت کریں گے. میں نہیں جانتا آپ اس زندگی میں جو آپ کو خدا نے دی ہے, اگر آپ حکومت نہیں کر رہے, آج کے دن کے بعد آپ کی حکومت خدا بحال کرنے والا ہے. آمین کے بعد 10 لوگوں کی ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت پڑھیں گے, پہلا پطرس 2 باب 9 آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص مملکت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجائب روشنی میں بلایا ہے. آمین. یہاں بھی خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ خدا نے آپ کو کاہن اور پریسٹ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کاہن اور پریسٹ. اوکے, can I go higher? Okay, I'm preparing something and I'm taking you somewhere. میں ایک راستہ تیار کر رہا ہوں اور میں آپ کو ہائٹس پر لے جانے والا ہوں. واعظ کی کتاب 10 باب 7 آیت. میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہیں اور انگلش میں سردار نہیں لکھا, انگلش میں کنگز لکھا ہوا ہے. میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں ان کے ایکول. ہاللیلویا. خدا نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ آپ کو پتا ہو ہم سب بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ہم سب کاہن ہیں اور ہم سب کنگز ہیں. تو کتنے ہر ایماندار کے پاس پوزیشنز ہیں, رینکس ہیں. ہر ایماندار کے پاس کتنے رینکس ہیں؟ ہاں 3. تو یہاں پر سلیمان اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو بادشاہ ہیں وہ پیدل ہیں اور جو نوکر ہیں وہ گھوڑوں پر ہیں. میں نہیں جانتا کون سی چیز آپ کی برکت کو روک رہی ہے, آپ کی دولت کو روک رہی ہے, آپ کے بزنس کو روک رہی ہے, آپ کے فائنینسز کو روک رہی ہے. آج کی سروس کی انوائنٹنگ, آج کے کلام کی انوائنٹنگ آپ کی کنگشپ کو ریسٹور کرنے والی ہے. آپ کنگز اور کوئین بننے والے ہیں. آپ شاہی زندگی گزارنے والے ہیں, شاہی زندگی گزارنے والے ہیں.
آپ کو پتا ہے کنگز کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ان کا کھانا رائل ہوتا ہے، ان کا پہننا رائل ہوتا ہے، ان کا سفر کرنا رائل ہوتا ہے، ان کا کھانا شاہی ہوتا ہے، ان کا پہناوا شاہی ہوتا ہے، ان کا رہنا شاہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. پر آپ سفرنگ میں ہیں، آپ گھر کا بل نہیں دے سکتے، آپ بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، آپ گھر کے راشن کے لیے پریشان ہیں، بجلی کے بل کے لیے پریشان ہیں. پر کلام کہہ رہا ہے، یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا، اٹ از فنش. اس نے تمام کر کے 3 چیزیں یسوع نے صلیب پر کی ہیں. اس کے کفارے کی وجہ سے اس نے آپ کو بیٹا ہونے کا حق بخشا ہے، اس نے آپ کو کاہن ہونے کا حق بخشا ہے، اور اس نے آپ کو بادشاہ ہونے کا حق بخشا ہے. صلیب پر جب اس نے کہا تمام ہوا، اور پردے کے پیچھے کینوس میں، بیہائنڈ دا سین کاسمس میں خدا کے فرشتے کچھ چیزیں آپ کے لیے کر چکے ہیں آلریڈی. یسوع کے کہنے سے وہ کر چکے ہیں، بہت ساری برکتیں آلریڈی آپ کو ریلیز کر چکے ہیں، پر آپ نے ریسیو نہیں کی. یہاں پر سلیمان اس بات کو وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے زمین پر ایک باطلان ہے، ایک ایرر ہے. جو نوکر ہیں وہ گھوڑوں پر ہے، جو بادشاہ ہیں وہ پیدل ہیں. جو کوئی بھی پیدل ہے آج کے بعد روز رائس رائڈ کرے گا. آمین. آپ کا کھڑا ہو کر آمین ہونا چاہیے تھا. آج کے دن کے بعد، ہاللیلویا، آج کے دن کے بعد اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں آپ اپنی آسمانی برکتوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح جو کنگ بنا کر، بادشاہ بنا کر جو خزانے اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں ریلیز کیے ہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہیں. آپ کے ہاتھ اسے ٹچ کرنے والے ہیں، آپ کی زبان اسے ٹیسٹ کرنے والی ہے، آپ کی آنکھیں اسے دیکھنے والی ہیں، آپ کے پاؤں اسے انجوائے کرنے والے ہیں. آپ شاندار گھر میں رہیں، شاندار کپڑے پہنے، شاندار لباس پہنے، شاندار کھانے کھائیں. ہر طرح کی سفرنگ اوور ہونے والی ہے، ہر طرح کی سفرنگ اوور ہونے والی ہے، ہر طرح کی سفرنگ اوور ہونے والی ہے. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں ہر طرح کی جہالت جانے والی ہے. پس میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، آج میں آپ کو نالج دے کر جاؤں گا، مکاشفہ دے کر جاؤں گا، آپ کی کنگشپ بحال ہوگی. ہاللیلویا. کھڑے رہیے گا، ذرا چند لمحوں کے لیے سوچیں. مسیح نے جان دی ہے، میں آیتوں پر آیتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ اور میں کنگز اور کوئنز ہیں. آپ اور میں کنگز اور کوئنز ہیں. جتنی خواتین ہیں کوئنز ہیں، جتنے مین ہیں کنگز ہیں. یہ کس نے آفس دیا ہے، کس نے پوزیشن دی ہے؟ یسوع کے مرنے سے، جی اٹھنے سے، اس کے بلڈ سے. مکاشفہ میں جیسے وہ جی اٹھا ہے اور یوحنا عارف اس رویا کو دیکھ رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ اس نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ کنگز اینڈ پریسٹ. تو سلیمان دیکھ رہا ہے کہ ایک ایرر ہے، بادشاہ پیدل ہیں اور نوکر گھوڑوں پر ہے، اور نوکر گھوڑوں پر ہے. میں یہ ایرر کو ریکٹ کرنے آیا ہوں، میں ہولی اینگر کے ساتھ آیا ہوں، اور آج کے کلام کے مکاشفے سے یہ ایرر میں کریکٹ کرنے آیا ہوں. جو کوئی بھی پاور آپ کی برکتوں کو روکے ہوئے ہے، ایکسپائر ہونے والی ہے. شاؤٹ ڈائی بائی فائر، شاؤٹ ایکسپائر. 10 لوگوں کی آواز ہو رہی ہے جو جتنا اونچا فائر اور ایکسپائر بول رہے ہیں ان کے دشمن ایکسپائر ہونے والے ہیں. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، یوں اس طرح اشارہ کر لیں، اتنی سی سے بھی سمجھ آئی. ساتھ والے کو کہیں، بولے تیرا پتہ نہیں پر میں کنگ. لیڈیز ایک دوسرے کو بولے آئی ایم کوئن. بتا دیں سٹائل کے ساتھ آئی ایم کوئن. مرد بھی سٹائل کے ساتھ بتا دیں، بولے آئی ایم کنگ. کوئی بھی کنگ
اس کی ڈومین ہوتی ہے, اس کی سلطنت ہوتی ہے. سلطنت کا مطلب اس کے پاس لینڈ ہوتی ہے. اگر آپ کرائے پر ہیں, آج کے دن کے بعد یہ قرض خداوند بریک کرنے والا ہے. آمین کے بعد 10 لوگوں کی ہے. خدا آپ کو اپنی لینڈ دینے والا ہے, خدا آپ کو اپنی پراپرٹی دینے والا ہے, خدا آپ کو اپنی برکتیں دینے والا ہے. کوئی بھی کنگ اس کے نوکر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نوکر ہوتے ہیں. اگر آپ خود کسی کے نوکر ہیں, that is an error. That is an error. Hallelujah. اگر آپ خود کسی کے نوکر ہیں تو اٹ مین آپ وہ کنگ ہیں جو کہیں پر قید ہیں اسپرچولی. میں آپ کو وہ آیت بھی بتاؤں گا. اگر آپ خود غلام ہیں اور لائف انجوائے نہیں کر رہے, یہ وہ کائن نہیں ہے کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ملک کے وزیر اعظم بنے, نہیں. کنگشپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انجوائے کریں, کسی بھی چیز کی آپ کو پریشانی نہ ہو. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پیسے آپ گن سکتے ہیں, اٹ مین اسٹل آپ کنگ نہیں ہیں. کنگشپ کا لیول یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں, اس کے گوداموں میں چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو گنتی نہیں ہوتی. جس کو پتا ہو کہ وہ 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے, 2 کروڑ ہے, جب تک آپ گن سکتے ہیں آپ کنگ نہیں ہیں. جب تک آپ گن سکتے ہیں آپ کنگ نہیں ہیں. پر میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے پاس اتنی بلیسنگ ہو کہ آپ گن نہ سکیں. آپ کے پاس اتنی برکتیں ہو, بائبل بیان کرتی ہے تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو, رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو, رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو. میں ڈکلیئر کرتا ہوں میں آپ کی لینڈ ریسٹور کرتا ہوں. کنگشپ کی پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ اس کی ڈومین ہوتی ہے, اس کی سلطنت ہوتی ہے, اس کے پاس ایک واسٹ لینڈ ہوتی ہے. آج کے دن کے بعد اگر لینڈ نہیں ہے, اگر آپ کے باپ دادا نے کرائے کے گھر میں آپ کو چھوڑا ہے, پیدا کیا اور وہیں مر گئے ہیں, میں ڈکلیئر کرتا ہوں کنگشپ آئل میری پریچنگ سے, جب میں پریچ کر رہا ہوں, کنگشپ آئل اگر آپ کے سر پر نہیں گرا وہ گرنے والا ہے. آپ لینڈ پر لینڈ بائی کریں, پراپرٹی پر پراپرٹی بائی کریں, پراپرٹی پر پراپرٹی بائی کریں, پراپرٹی پر پراپرٹی بائی کریں. ہاللیلویا. آپ کے اندر سروینٹس ہو جو آپ کو سرو کریں. کنگ کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اس کے سروینٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتی ہے؟ سروینٹ ہوتے ہیں. آپ کے سروینٹ ہو, 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 آپ کے سروینٹ ہو. کچھ لوگ آپ کو سرو کریں, کچھ لوگ آپ کو گڈ مارننگ بولیں, کچھ لوگ آپ کو اٹھائیں, گڈ مارننگ سر, گڈ مارننگ میم, اپنا ناشتہ کھا لیں, اپنا ناشتہ لے لیں. کوئی آپ کو استری کر کے کپڑے دے, بولے گڈ مارننگ سر, گڈ مارننگ میم, آپ کے اٹھنے کا وقت ہو گیا. کچھ لوگ ہاللیلویا آپ کے آنے سے پہلے جگہ تیار کریں. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کی لائف میں یہ گریس ہو, خدا آپ کو اپلفٹ کرے. آپ صرف نوکر نہیں, آپ مالک بنے. ہاللیلویا. آپ صرف نوکر نہیں, کیا بنے؟ مالک بنے. کنگ کے پاس تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس ڈیفرنٹ ویرائٹی کی کرنسیز, خزانے ہوتے ہیں. ہیرے, جواہرات, موتی, قیمتی سٹونز. صرف ایک کرنسی نہیں ہوتی, ساری کرنسیاں ہوتی ہیں. ہر طرح کی جولری ہوتی ہے. میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اگر آپ پرنسز ہیں, ہر طرح کی جولری آپ کے پاس, ہر طرح کا گولڈ, ڈائمنڈ, سلور, مینگنیز, جو بھی چیزیں ہیں آپ کے خزانوں میں ہو. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے برکت نہیں ریسیو کر رہے. آمین کے بعد بیماروں والی ہے, آمین کے بعد بیماروں والی ہے. میں اس آلٹر پر نیل ڈاؤن ہو کر ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کی کنگشپ میں بحال کرنے آیا ہوں, آپ کی بادشاہت میں بحال کرنے آیا ہوں, آپ کی کنگشپ میں بحال کرنے آیا ہوں. شاؤٹ فائر. جو کوئی بھی آپ کے آج کی سفرنگ کی وجہ ایکسپائر ہونے والا ہے, جو کوئی بھی تیری تنگی کی وجہ ایکسپائر ہونے والا ہے, جو کوئی بھی تیرے کرائے کے گھر میں رہنے کی وجہ ایکسپائر ہونے والا ہے,
जो कोई भी तेरे बे औलाद होने की वजह एक्सपायर होने वाला है, जो कोई भी तेरे कंगले होने की वजह एक्सपायर होने वाला है, जो कोई भी तेरे पैदल चलने की वजह एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। उसने कहा मैंने जमीन पर एक एरर देखा है। अपने साथ वाले को कहें मुझे तेरी लाइफ में एरर नजर आ रहा है, पर गुड न्यूज ये है आज वो एरर करेक्ट होने वाला है। आसमान से किंगशिप ऑयल तेरे सर पर आने वाला है। हर वो जाति जूलियत जो तेरे और तख्त के रास्ते में रुकावट है। देखे दाऊद नो बॉडी है, कोई नहीं जानता, बियाबान में है, रिजेक्ट किया हुआ है रिश्तेदारों ने, मां बाप ने, बहन भाइयों ने, सोसाइटी ने, और वो रिजेक्ट किया हुआ है। दाऊद के और दाऊद के तख्त के दरमियान जो रुकावट है वो जाति जूलियत है। जैसे उसने जाति जूलियत को मारा है, सिर्फ एक जाइंट को, सिर्फ एक डीमन को, सिर्फ एक इवल स्पिरिट को, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैन को जैसे उसने मारा है वो अपने तख्त पर बहाल हो गए। मैं नहीं जानता कौन सा जाइंट, कौन सा स्ट्रॉन्ग मैन, कौन सी इवल स्पिरिट आपके और आपके किंग होने के रास्ते में रुकावट है, एक्सपायर होने वाली है। शाउट एक्सपायर, बोले डाई बाय फायर। क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। यस यस यस। आमीन। दाऊद कह रहा है दिस इज द डे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन। ये है वो दिन, आज का दिन आपका दिन। आज जाति जूलियत मरने वाला है, आज जाति जूलियत मरने वाला है। मैं वो शख्स हूं जो आपको हेवन में इंट्रोड्यूस करवाने आया हूं। जो एंजल आपके नाम का ऑयल लेकर आसमान में ही वेट कर रहे हैं कि कब वो ऑयल उंडेलना है, कब इसकी किंगशिप बहाल करने वाली है। ये वो सीजन है, ये वो टाइम है, ये वो मंथ है और ये वो दिन है। बोले आमीन। जब तक वो ऑयल नहीं आया तब तक वो बहाल नहीं हुआ। खुदावन यीशु ने ऑयल नहीं ब्लड देकर आपको किंग बनाया। सोचे कोई शख्स पे कर दे, एक्स्ट्रा पे, कि ये महल, ये प्रॉपर्टी, ये नौकर, ये गाड़ियां, ये दौलत, ये शान, ये ताकत, ये फौजें इस बंदे की हैं, इस बंदी की हैं, और वो जान देकर चला जाए। और आप कंगले फिर रहे हैं, आप किराए पर हैं। आपकी लाइफ जोनाथन के उस बेटे मुफीबूसत जैसी है। मुफीबूसत बादशाह के बेटे जोनाथन, अगला सक्सेसर, अगला बादशाह साउल के बाद जोनाथन था, और जोनाथन के बाद मुफीबूसत था। पर वो किसके घर में रह रहा है? नौकरानी के घर में। उसके टखने टूटे हुए हैं और वो लंगड़ा कर चल रहा है, सवारी भी नहीं है। उनके महल में कोई और बैठा हुआ है, उसकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है, उसके कपड़े कोई और पहन रहा है, पर जो कोई भी पहन रहा है आपकी जगह छोड़ने वाला है। आमीन। 10 लोगों का आ रहा है। आज की सर्विस प्रॉस्पेरिटी की सर्विस है, बरकत की सर्विस है। जिनका आमीन ऊंचा होगा, जिनको समझ आ रही है बरकत को रिसीव करने वाले, आज आपका आमीन एंजल को अट्रैक्ट करेगा कि किंगशिप का ऑयल आपके सर में उड़ेले। क्योंकि आप थक गए हैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया किराए के घर में, किराया दे दे के थक गया हूं। वैगनों का किराया, घर का किराया, नो 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 नो। वेयर इज माई ऑन कोठी? मेरा अपना महल किधर है, जहां मेरे अपने नौकर हो, जहां मेरी अपनी सवारी हो। उबर का, ग्रीन का, यांगो का किराया दे रहे हैं,
रिक्शे का, टुक टुक पर आ रहे हैं, किराया दे रहे हैं, आपकी अपनी सवारी किधर है? आपके अपने रथ किधर है? आपके अपने घोड़े किधर हैं? आपके अपने रथों को चलाने वाले किधर हैं? यीशु मसीह ने आपको सिर्फ आदम के मनुष्य गुनाह से छुटकारा नहीं दिया, आपको बरकतों से माला माल किया। उसने कहा इफिसियों 1 के अंदर, दूसरी आयत के अंदर, कि खुदा ने हमें तमाम आसमानी बरकतों से माला माल किया मसीह यीशु में। पर वो बरकतें मैंने आज तक बयान नहीं की, आज मैं आपको बयान कर रहा हूं। वो बरकतें क्या है? किंगशिप। अपने साथ वाले की तरफ देखें, उसके गौर से बोले आर यू किंग? बोले तुझे डाउट है कलाम पर? आपको डाउट हो, मुझे नहीं है। आई डोंट डाउट। बोले मुझे नहीं है डेढ़ डाउट। यीशु ने आपको काहिन बनाया और बादशाह बनाया, किंग्स एंड प्रीस्ट। अब कहानत नहीं है, बिल्कुल लाइफ मुफीबूसत जैसी है कि एक दिन महल में पैदा तो हुए हैं आसमान पर, कहानत मिली है और किंगशिप मिली है, पर जमीन में सफरिंग में, नौकरों की तरह सफरिंग में बुड़बुड़ा रहे हैं। मर जाऊं तो चंगा है, क्या जिंदगी है, केड़े गरीब घर पैदा हो गए। मुझे भी बिल गेट के घर में पैदा होना चाहिए था, मुझे भी एलन मास्क के घर पैदा होना चाहिए था, मुझे भी एंजेलिना जूली के घर पैदा होना चाहिए था। हैं? रो रहे, किधर है मेरी इंजॉयमेंट? पर आज की सर्विस में आपकी इंजॉयमेंट वापस आने वाली है, आपकी स्माइल वापस आने वाली है। हालेलुया। किंग के पास लैंड होती है, किंग के पास कपड़े होते हैं, किंग के पास नौकर होते हैं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, हर एक प्रोग्राम में वही कपड़े इस्त्री करके आप जा रहे होते हैं, हर एक प्रोग्राम में वही एक ड्रेस जिसको आप कहते हैं ये मेरा बेस्ट संडे सूट है। That devil is a liar. Hallelujah. Hallelujah. बोले खकता। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जैसे आप खकता बोल रहे हैं, हर वो डीमन जलकर भस्म होने वाला है। बोले खकता, ऊंची आवाज में बोले, 3 दफा बोले, ताली बजाकर बोलेंगे। राब रोको शेते ब्रांडे, आपकी दौलत बहाल होने वाली है। आमीन। आपकी वार्डरोब रॉयल होगी। आप जो कपड़े पहनेंगे, मैं एक इंडियन बॉलीवुड के एक्टर का नाम नहीं बोलूंगा, मैं उसके बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था। बोलते हैं कि साल शुरू होता है, 365 ड्रेस खरीदता है, 365 शूज खरीदता है। जो ड्रेस एक बार पहनता है वो दोबारा नहीं पहनता। और वो भगवान को मानने वाले, देवी देवताओं को, पत्थर को, हम यीशु को मानने वाले हैं। मेरे लिए यीशु ने ब्लड बहाया है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपके घर में इतनी बड़ी, जितना बड़ा अभी आपका घर है जिसमें आप गुजारा कर रहे हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं इतनी बड़ी आपकी कपड़ों की वार्डरोब हो। आमीन के बाद 10 लोगों की है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आप मांगे नहीं कपड़े, मांग के ना पहने, आपके लिए पहनने की कसरत हो, 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 पहनने की कसरत हो। बादशाह के मेज पर वैरायटी होती है, बुफे होता है। बादशाह का सुबह ब्रेकफास्ट बुफे होता है, लंच बुफे होता है, डिनर बुफे होता है। आप क्या क्या है? आपका बुफे नहीं है, बुस्सी हुई दाल है। रात को भी वही दाल खाई थी, सुबह नाश्ते में वही दाल गरम कर ली है, थोड़ी सी बच गई है, उसी में पानी डाल के, घी डाल के उसको दोबारा तड़का लगा लिया है। दोपहर को भी वही ताज़ा कर लिया, फिर बच गई है, फिर शाम को मेहमान आए, उनको भी वही दाल सर्व कर दी है। उसके मेज पर बुफे है, आपके टेबल पर बुसी हुई दाल है। दैट इज एन एरर। वो कह रहा है जमीन पर मैंने एक एरर देखा है। जो बादशाह है वो पैदल है और जो नौकर है वो घोड़ों पर है।
میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں خدا دشمنوں کے روبرو آپ کے لیے دسترخوان تیار کرے. جتنے زیادہ آپ کے دشمن ہیں اتنا لمبا دسترخوان ہو, کھانوں کی کثرت ہو, آپ کے کھتے لبریز ہو, آپ کے کھتے لبریز ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ کے کھتے لبریز ہو, راشن کی کمی آنے نہ پائے, راشن کی کمی آنے نہ پائے. آپ یہ نہ, کچھ لوگ بیچارے ایک توڑا لے کر آتے ہیں, گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اوے تو 2 روٹیاں نہیں کھانی ہیں, تو 3 نہیں کھانی ہے, آٹا جلدی ختم ہو جائے گا. غربت کی یہ حالت ہے, ٹوک رہے ہوتے ہیں, گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں, سبزی کسی نے ایکسٹرا ڈال لی ہے اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ویسٹ نہیں کرنا, یہی سالن ہے, یہی ہے. That devil is a liar. آپ کے کھتوں میں اتنا خزانہ ہو, اتنا کھانا ہو کہ آپ کو پتہ نہ ہو کتنی ویرائٹی ہے. ہر طرح کا فروٹ آپ کے ٹیبل پر ہو, ہر طرح کا اناج آپ کے میز پر ہو, آپ زمین کے ہر پھل کو, ہر اناج کو انجوائے کریں. اوپر آسمان کی طرف بولے میرے یسوع کے نام سے, جو یسوع نے جان دے کر میرے لیے کنگشپ ریلیز کی ہے, میں ریسیو کرتا ہوں. دونوں ہاتھوں سے بولے آئی ریسیو, بولے آئی ریسیو, بولے آئی بلیو, آئی ریسیو. زوردار تعلیم جائے, تالیاں بجائے گا. اب سمجھ آئیے, آپ کو سمجھ آئیے ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ کی میں کنگشپ بحال کرنے آیا ہوں. اپنے ساتھ والے کے کان میں کہہ دیں, بولے میسیج تیرے لیے ہے, مین آف گاڈ آج تیری کنگشپ بحال کرنے آیا. اگر آپ کو سمجھ آئیے تو تالیاں بجائے گا اور تشریف رکھے گا. تالیاں بھی مارو والی نہیں بجانا, شاؤٹ کریں گے. یس یس. کاہن بنایا ہے. اب میں فلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کدھر جا رہے ہیں. اب ہم کہہ تو رہے ہیں اے ہمارے باپ, پر باپ کے بچے سفرنگ میں ہیں. ہمیں بادشاہ بنایا ہے اور کاہن بنایا ہے. جب تک آپ کو اپنی کہانت کا فنکشن نہیں پتا, جب تک آپ کو اپنی کہانت کا فنکشن نہیں پتا, استعمال نہیں پتا, آپ اپنی بادشاہت کو بحال نہیں کر سکتے. آئی ریپیٹ, جب ڈائمینشن کا فنکشن نہیں پتا تب تک آپ کی کنگشپ بحال نہیں ہو سکتی. اس نے ہمیں کاہن بنایا ہے اور بادشاہ بنایا ہے. بادشاہت بحال نہیں ہوگی جب تک کنگشپ نہیں ہوگی. ہاللیلویا. Can I teach a side? I am teaching you very deep now. Can I go higher? Old Testament میں 3 میجر خدمتیں تھیں, آفیسز تھے. کاہن, بادشاہ اور نبی. کاہن, بادشاہ اور نبی. کاہن کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے خدا کے حضور دعا کرتا تھا, لوگوں کی ریکویسٹیں خدا کے حضور پریزنٹ کرتا تھا, لوگوں کے ہدیے قربانیاں خدا کے لیے قربان کرتا تھا آلٹر پر. یہ کاہن کا کام تھا. یعنی وہ خدا اور لوگوں کے درمیان میڈیٹر تھا. بادشاہ کا کام کیا تھا؟ وہ زمینی نظام کو, گورنمنٹ کو, سٹرکچر کو, اداروں کو وہ دیکھتا تھا. نبی کا کام کیا تھا؟ جب خدا کوئی میسیج دینا چاہتا تھا تو وہ نبی سے بات کرتا تھا اور نبی جا کر قوم سے. پر جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی, لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی, لوگوں کا کوشچن ہوتا تھا, وہ ڈیمانڈ یا ضرورت یا وہ کوشچن یا ان کی پریئر ریکویسٹ, آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے,
लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट काहिन खुदा के हजूर लेकर जाता था। हालेलुया। और लोग जब सारा साल गुनाह करते थे, बदी करते थे, तो साल के बाद वो अपने लिए एक बर्रा खुदा के हजूर लेकर आते थे। न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं दो तरह के मेजर ऑर्डर थे कहानत के। ऑर्डर ऑफ एरन, हारून के तर्ज के तौर के काहिन, या मलकीसेदक के तर्ज के तौर के कहानत। कहानत की दो कैटेगरी थी, कहानत की दो टाइप्स थी। हारून के तर्ज की कहानत, यानी जिसमें हारून के बच्चे लावी और वो थे, और एक मलकीसेदक के तर्ज की तौर की कहानत जिसका ना शुरू था ना आखिर था। मलकीसेदक सालम का बादशाह जब इब्राहिम को मिलने के लिए आया तो उसने इब्राहिम को उसकी दाई की ली और उसको रोटी और मैं से बरकत दी। काहिन का काम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लोगों के लिए शिफायत करना था, लोगों की दरख्वास्तें, प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के पास ले जाना था। और लोग जब बदी कर लेते तो लोगों को क्लिंस करवाना, प्योरीफाई करवाना, ये काहिन की खिदमत थी, ताकि कोई बरकतों से महरूम ना हो जाए। मज़हबे की तमाम खिदमत काहिन अदा करता था। तो अब उसके बाद मैंने अगला पॉइंट बताया कि कहानत दो किस्म की है, मलकीसेदक के तौर की कहानत और हारून के तौर की कहानत। हारून के तर्ज की कहानत एंड हो गई है, पर जो मलकीसेदक के तौर की कहानत है वो एंड नहीं हुई। उस कहानत का हिस्सा मैं और आप है। आमीन नहीं बोला? उस तर्ज की कहानत मैं और आप है। कहानत की कुछ और फंक्शनैलिटी आपको बताता हूं ताकि आपको पता हो कि काहिन क्यों बनाया। कोई भी बादशाह अपनी बादशाह कायम नहीं कर सकता जब तक कहानत ना हो। और कहानत क्यों? क्योंकि दूसरे लफ्जों में हर बादशाह को, हर किंग को ऑल्टर बैकअप करती है। ऑल्टर, आपका तख्त नहीं है जब आपके पीछे ऑल्टर नहीं है। आपका तख्त नहीं है जब तक आपके पीछे ऑल्टर नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि हम में मसीह की तरह डुअल फंक्शनैलिटी है। मसीह बादशाह भी था और मसीह काहिन भी था। वो अपना ही खून लेकर आसमानी मज़बे पर चला गया। तालियों के बाद तो वही डायमेंशन मसीह ने आपको दी है कि आप किंग भी हैं पर आप प्रीस्ट भी हैं, आप काहिन भी हैं। तो जब तक आप अपनी कहानत का किरदार नहीं समझेंगे आप जिंदगी में अमीर नहीं हो सकते। मैं सादा लफ्ज बोलता हूं, भारी लफ्ज नहीं बोलता, पतले लफ्ज, मिलावट वाले लफ्ज जो आपके कल्चर के लफ्ज आपको समझ आए, थियोलॉजी के लफ्ज नहीं बोलता। चले सादा सादा बात, आप दौलतमंद नहीं हो सकते, जिंदगी नहीं इंजॉय कर सकते इस जमीन पर जब तक आपको अपने तमाम फंक्शन नहीं पता। हालेलुया। मिसाल के तौर पर इस साउंड सिस्टम की बात करूंगा। लास्ट ईयर दिसंबर में यहां बच्चों का कोई टैबलो हो रहा था और जो पिन लगाते हैं मोबाइल से मिक्सर के अंदर वो खराब हो गई और वो एक ही वायर थी और बच्चे स्टेज पर रेडी थे टैबलो करने के लिए। सारे परेशान, पिने लगा रहे हैं, दोबारा चेक कर रहे हैं, पॉइंट्स चेक कर रहे हैं। तार खराब हो गई थी, सारे परेशान हो गए। मैं वहाँ यहाँ बैठा देख रहा था। मैं उठा हूँ, इसके अंदर ब्लूटूथ का फंक्शन है और मोबाइल के अंदर भी होता है। मैंने ब्लूटूथ को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और बच्चों ने अपना टैबलो कर लिया। जस्ट समझेगा, अगर
अगर मैं बैठा रहता और इनको मिक्सर का या उनके हाथ के अंदर फोन का फंक्शन ना बताता, बच्चे जिन्होंने महीना 2 महीने रिहर्सल की थी वो अपनी परफॉर्मेंस से महरूम रह जाते। अपनी जो तालियां उनको मिली, जो तोहफे उनको मिले, वो उससे महरूम रह जाते। अगर आपको अपने तमाम फंक्शन नहीं पता, आप जिंदगी तो गुजारेंगे पर खुदा पर गिला नहीं कर सकते, खुदा पर उज़र नहीं कर सकते कि मैं गरीब क्यों, मैं किराए पे क्यों। जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाज़ों पर बैठ रहे हैं, डेली हर तरह की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। वो भी तेरी इबादत कर रहे हैं, मैं भी, पर मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं। क्यों का जवाब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी पूरी फंक्शनैलिटी नहीं पता, आपको अपना पूरा हक नहीं पता कि खुदा ने आपको किंग बनाया है और खुदा ने आपको काहिन बनाया है। जब तक आप अपनी कहानत वाले पहलू को, पोजीशन को नहीं समझेंगे, आपकी किंगशिप बहाल नहीं होगी। आमीन की आवाज नहीं होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज मैं आपको इसीलिए द पावर ऑफ प्रीस्टहुड सिखाने आया हूं कि आपकी कहानत का फंक्शन क्या है और उसकी पावर क्या है। जब मैं आपको समझाऊंगा, आपकी किंगशिप बहाल होने वाली है, आपकी किंगशिप बहाल होने वाली है। ये पास्टर होने से कोई 10 गुना, कोई 100 गुना ज्यादा है। ओ जी मैं तो पास्टर हूं, मैं भी पास्टर होके भी सफरिंग में हो सकता है। मैं भी कई साल पहले जब मैं पास्टर था, पर मुझे अपनी कहानत का पता नहीं था, मुझे अपनी किंगशिप का पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मसीह ने जान देकर सिर्फ मेरे गुनाह माफ नहीं करवाए, बल्कि मुझे उसने बादशाह भी बनाया और काहिन भी। और किस तौर का? हारून के तौर का नहीं, मलकिसिदक के तौर का काहिन बनाया। अगले मैसेज में मैं आपको पूरा मलकिसिदक का ऑर्डर बताऊंगा, पर आज उसकी बेस बना रहा हूं। तो बादशाह नहीं है जब तक ऑल्टर नहीं है, ऑल्टर नहीं है जब तक काहिन नहीं है। तो आप जब काहिन है, आपकी ऑल्टर है और आप ही किंग बरकतों को एंजॉय करने वाले। दूसरे लफ्जों में, जो चीज आपको चाहिए, आप रूहानी दुनिया में आप उसको रिसीव कर सकते। खुदा ने आपको ये ऑडेसिटी दी है, ये राइट दिया है, ये अथॉरिटी दी है। जो कुछ आपको चाहिए, आप अपनी कहानत वाली डायमेंशन से रिसीव करके अपनी बादशाहत वाली डायमेंशन में इंजॉय कर सकते हैं। जब मैंने इस अपनी फंक्शनैलिटी को समझा, मेरी लाइफ स्मूथ हो गई। मैं आपकी स्मूथ करने आया। आमीन 10 लोगों का। मुझे लगता है ये साइड को मुझे कलाम सुनाना चाहिए, ये नहीं बहाल होना चाहता। तालियां बजा रहे हैं ये साइड, इस साइड जरा नॉइज कीजिएगा। शादमानी का शो, आप प्रिंसेस क्वींस बहाल होने वाली हैं, एस्टर की तरह। आमीन की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। जो मुकाशफा में लेकर आया हूं, वेरी थिक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसको आपके लेवल पर लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, पर मैं उसको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अभी तक की समझ आई है कि आप क्या हैं? किंग है, पर आप क्या है? साथ काहिन भी हैं। आप क्या है? साथ बेटे भी हैं। अभी बेटे को साइड पर रख दें। आप काहिन है और आप बादशाह हैं। और आपने देखा कि आप जो बादशाह हैं वो बेमुल्के बादशाह हैं। ना कोई जमीन है, ना कोई नौकर है, ना कोई लिबास है। अलमारी के अंदर जो कपड़े हैं फटे हुए हैं, कईयों को उल्ली लग गई है, कईयों को पोलियो हो गया, कपड़ों को इस्त्री करते हैं वो फिर भी मैंने नहीं सीधा होना। कई आपके कफ कॉलर इतने, उनको इतना ज्यादा पोलियो हो जाता है, जितनी भी इस्त्री मारे पानी कर करके वो नहीं सीधे थे। पर ये एरर है।
خدا آپ کو اتنی بلیسنگ دے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو. ہاللیلویا. کاہن جب تک نہیں ہے تب تک بادشاہ نہیں ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پیدائش نکالیے گا. اب میں تھوڑا اور لیول پر جا رہا ہوں. پیدائش 2:15 پڑھیے گا. یس. دن بدن ہم آلٹر کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں آپ کو کچھ ٹیچ کرنے کے لیے تاکہ آپ کو اپنی کہانت کا لیول پتا ہو اور آپ کی کنگشپ بحال ہو. پیسہ آپ کے لیے میٹر نہ کرے. آمین کے بعد 10 لوگوں کی ہے. کوئی اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی کیا کرے؟ باغبانی کرے اور نگہبانی کرے. انگلش میں لکھا ہے ڈریس اٹ اینڈ کیپ اٹ. کیا لکھا ہے؟ ڈریس اٹ اینڈ کیپ اٹ. باغبانی کی جگہ لکھا ہے ڈریس اٹ. یعنی جب پتوں کو کاٹتے ہیں، بڑے ہوئے ٹہنیوں کو کاٹتے ہیں مالی، اور درخت کو جو ٹیڑھا ترچھا ہو رہا ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں، اس کو ڈریسنگ کہتے ہیں. جس طرح آپ پٹی کرتے ہیں اس کو بھی ڈریسنگ کہتے ہیں. جو ہم کپڑے بولتے ہیں پہنتے ہیں اس کو بھی ڈریسنگ کہتے ہیں. پر جب آپ ٹہنیاں کاٹتے ہیں اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ڈریسنگ. تو اس کو اردو میں باغبانی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پر عبرانی میں اسے یادا کہتے ہیں. کیا؟ عبرانی کا لفظ زور سے بولے. یادا. بولے یادا. یادا 3 دفعہ بولے. یادا. جب تک آپ کو کچھ چیزیں روٹ سے نہیں پتا آپ کے فروٹ نہیں آ سکتے. اس لیے یہ بیسک لائف ہے اور بیسک چیز ہے. اس لیے میں آپ کے روٹ کو درست کرنے آیا ہوں تاکہ آپ کا فروٹ درست ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو جو یہاں باغبانی ورڈ ہے انگلش میں کیپ ہے اور عبرانی میں یادا ہے. اور جہاں نگہبانی ہے وہاں انگلش میں کیپ ہے اور عبرانی میں وہاں پر جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے شمار. بولے شمار. 3 بار بولے. بولے شمار. بولے شمار کا مطلب ہے نگہبان. ہاللیلویا. کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں؟ ذرا تالیاں بجانے میں آپ کو ہائر لے جا رہا ہوں. ریڈی؟ ریڈی؟ یس. آر یو ریڈی؟ 3 دفعہ بولیں. بولیں یادا. بولیں شمار. ہاللیلویا. 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 پریسٹہوڈ. کاہن باغ عدن کے اندر پہلا جو کاہن ہے وہ آدم خود ہے. خدا آدم کو باغ عدن کے اندر کہانت دی اور وہ کہانت کی خدمت کو باغ عدن کے اندر سر انجام دے رہا ہے. جب باغ عدن کے اندر آدم کہانت کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے تو وہ وہاں پر باغبانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے. ہاللیلویا. باغبانی کا خدا کا مین مقصد کیا تھا؟ کیونکہ باغ عدن خدا نے زمین پر بنایا تھا. خدا اپنی پوزیشن سے اترا اور اس نے ایسٹ میں، مشرق میں ایک باغ لگایا اور وہاں آدم کو اور اس کے ساتھ ہوا کو رکھا. تو اسے کہانت دی. کہانت کا مین فنکشن کیا ہے؟ کہ زمین کو آسمان سے کنیکٹ کرنا، اپنے علاقے کو، اپنی ٹیریٹری کو. اگر آپ اپنی فیملی میں کاہن ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اپنی فیملی کو آسمان میں کنیکٹ کریں. جب آپ کی فیملی اس آلٹر کی وجہ سے
आसमान में कनेक्ट है, तो तब आपका दूसरा जो पहलू है, तब आपका जो दूसरा फंक्शन है किंग होने का, तब भी जमीन पर आपकी बादशाह स्टैब्लिश होती है। अगर आप आसमान में कहानत की वजह से, अल्टर की वजह से कनेक्ट नहीं है, तब तक आपका जो दूसरा पहलू है, जो मसीह के ब्लड से हमने रिसीव किया है, कहानत और बादशाहत, वो पूरा नहीं होता। क्यों आप सफरिंग में हैं? क्योंकि नंबर एक, आपको अपनी कहानत का पता नहीं है। अगर पता भी है तो आपने कभी खुद को हेवन में कनेक्ट नहीं किया। जब आप खुद को हेवन में कनेक्ट करेंगे, जमीन आपकी डोमिनियन होगी, जमीन की चीजें आपके ताबे होगी, जमीन की चीजें खुद आपके पास आएंगी। आमीन। 10 लोगों का है। मैं आप लोगों की खातिर स्लो चल रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो शैतान ने क्या किया? आदम से कहानत छीन ली और उसने कहानत को अपने लोगों को दे दिया। और पहला शैतानी काहिन बाइबल में जो बना है, जिसने पहला कत्ल किया है, वो ही पहला शैतानी काहिन बना है। हालेलुया। काइन ने अपने भाई हाबल को मार दिया। काइन पहला बाइबल के अंदर ईवल प्रीस्ट बना है। और बाइबल में तमाम चीजें लिखी नहीं गई, पर बहुत सारी चीजें अगर आपके पास नॉलेज है, खुदा का रूह है और कलाम की आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ सकते हैं। अब कहानत क्या करती है? पहला, जमीन को आसमान से कनेक्ट करती है। और आसमान से जब आप कनेक्ट है, खुदा आपको इनफ पावर, ग्रेस और बरकतें देता है ताकि जमीन पर आप आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। आपको काहिन होते हुए आसमान से कनेक्ट होना है। आप कनेक्ट नहीं है, इसीलिए आप गुर्बत में हैं, इसीलिए आप काल में हैं, इसीलिए आप भूख में हैं। पर अब एक और खतरे की बात है कि कहानत छिन गई है। अभी हम निजात का टॉपिक नहीं देखेंगे। बाग एदन में गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई और सारी कौम गुनाह में चली गई, सारी एडमिक ब्लड लाइन गुनाह में चली गई। पर आज कहानत भी मैं बताऊंगा कि बाग एदन से कहानत छीन ली गई। और कहानत पहला शैतान ने, लूसीफर ने अपना काहिन कैन को बनाया। काइन पहला काहिन है। आप कहेंगे पास साहब बाइबल में तो नहीं लिखा कि वो शैतानी काइन है, सिर्फ इतना लिखा है कि वो नूद के इलाका में चला गया, वहां उसने एक औरत से शादी की और उसके बाद और ये और उसने शहर बनाए, उसने बहुत सारी चीजें बनाई। पर सबूत क्या है? कोई भी काहिन जब खुदा बनाता है, खुदा उसे एक किस्म का जमीन पर गवर्नर बनाता है। इसको समझने के लिए आपको ब्रिटिश दुनिया को समझना है। कहना गो है, मैंने बताया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, पर मैं आपके लिए बड़ा स्वीट करने वाला हूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर और इंडिया पर और बहुत सारे मुल्कों पर 100 साल हुकूमत की। आज अगर ये मैंने कोट पहना हुआ है तो ये पाकिस्तान का या इंडिया का कल्चर नहीं है, ये यूके का कल्चर है। आज आप और मैं चाय पीते हैं तो ये आपका और मेरा कल्चर नहीं है, ये यूके का कल्चर है। आज आप और मैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कौन सी साइड पर ड्राइव करते हैं? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यूके में जब आप जाएंगे वहां राइट हैंड साइड ड्राइव है। अब जब भी 100 साल में उनकी हुकूमत होती थी, वो अपना गवर्नर भेजते थे। जैसे लास्ट जो गवर्नर था जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए, लाउड मैन बैटन था लास्ट गवर्नर उनका। तो वो गवर्नर का काम क्या होता था कि जिस टेरिटरी में यूके की मलका ने उसे असाइन किया होता था, उसका मकसद होता था कि वहां पर लोग वैसी बोली बोले जैसी हेडक्वार्टर की, समझ है? वैसे कपड़े पहने जैसे हेडक्वार्टर के, वैसे खाना खाएं जैसे
آج آپ چائے پی رہے ہیں، یہ یہاں کا کلچر نہیں ہے. یہاں کا کلچر مکی دی روٹی، گندلاں دا ساگ اور لسی ہے. تالیاں نہیں بجا رہے آپ؟ لیکن آج بہت کم لوگ مکئی کی روٹی، گندلوں کا ساگ اور ان کے ناشتے کے اندر لسی کا گلاس ہوتا ہے، پر چائے ہر ناشتے کے ٹیبل پر موجود ہوتی ہے. وہ چلے گئے ہیں، ہمیں بنے ہوئے تقریباً 75-76 سال ہو گئے ہیں، پر چائے ختم نہیں ہوئی. چائے کا نشہ تیز ہو گیا. بھلے وہ چلے گئے، وہ واپس چلے گئے، پر وہ اپنا اثر چھوڑ گئے ہیں. بھلے وہ چلے گئے ہیں، آپ اور میں پینٹ کوٹ سوٹ پہن رہے ہیں، ٹراؤزر پہن رہے ہیں، سکرٹ پہن رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن رہے ہیں. آج کی بیٹیاں ٹی شرٹ، ٹراؤزر ہر چیز پہن رہی ہیں، پر یہ کس کا اثر ہے؟ یو کے کی حکومت کا. 100 سال انہوں نے حکومت کی. گورنر کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ جس ٹیریٹری پر، جس علاقے پر اسے گورنر لگایا جاتا تھا، اس کا مقصد تھا کہ وہاں کے لوگوں پر ہیڈ کوارٹر کا اثر ہو. آپ یو کے جا کر پینٹ پہننا نہیں سیکھتے تھے، پر آپ پاکستان میں رہ کر ہی پینٹ پہنتے ہیں. وہاں جا کر نہیں سیکھی، چائے وہاں جا کر نہیں پی، پر کیا ہے؟ وہ گورنر سکھاتا تھا. یہی سسٹم کاہن کا ہے، یہی فنکشن کہانت کا ہے کہ خدا زمین پر جسے کاہن بناتا ہے، جو آسمان کا کلچر ہے. آپ نے آسمان کی سیر نہیں کی، آپ نے آسمان کو وزٹ نہیں کیا، آپ کو آسمانی لینگویج نہیں آتی، پر آپ یہاں پر ربے شاکا شابو ربو شاکا تھا ٹنگ میں دعا کریں گے، غیر زبان میں دعا کریں گے. راکا سوتے براکا ذاتے براندو ربو شکے. آپ بولتے غیر زبان بولتے ہیں. اور لکھا ہے، پالوس کہہ رہا ہے میں تم سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، میں تم سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. لکھا جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ بھید کی باتیں کرتا ہے، وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. آپ آسمانی زبان بول رہے ہیں، آپ فرشتوں کی زبان بول رہے ہیں. آپ فرشتوں کے شہر میں نہیں گئے، آپ فرشتوں کے ملک میں نہیں گئے. کس طرح سے ممکن ہوا؟ کاہن نے آپ کو توبہ کروائی، بپتسمہ دیا، اور جیسے بپتسمہ دے کر آپ پر دعا کی، آسمانی لینگویج آپ پر ٹرانسفر ہو گئی. تالیوں کی بات نہیں. ہاللیلویا. تو آسمان کی طرح یہاں پرستار ورشپ کرتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ جھومیں، ناچیں، گائیں. آپ نے آسمان پر سیر نہیں کی. اگر آپ نے آسمان کی سیر کی ہو، وہاں آپ دیکھیں گے کس طرح قدوس 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 قدوس، ہولی 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 ہولی. فرشتے آسمان پر اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی گیت گا رہے ہیں، پر آپ زمین پر گیت گا رہے ہیں. کس طرح ہوا کہ جب آپ چرچ کا حصہ بنے، جب آپ کاہن کے قریب آئے، کاہن نے آپ کو سکھایا. تو یہ کہاں کا کلچر ہے؟ یہ مکاشفہ کی کتاب سے میں پتہ چلتا ہے آسمان کا کلچر ہے. آسمان پر کوئی ٹرین نہیں جاتی، آسمان پر کوئی فلائٹ نہیں جاتی، پر آپ زمین پر رہتے ہوئے غیر زبان بول رہے ہیں، آپ زمین پر رہتے ہوئے ورشپ کر رہے ہیں، آپ زمین پر رہتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں جو آسمان پر فرشتے کر رہے ہیں. تو یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ کاہن اور مذہبے کی بدولت ہوا ہے. زوردار تعلیم دیں گے. ہاللیلویا. تو کاہن کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر جانے سے پہلے آپ کو آسمان کا کلچر دے رہا ہے. ہاللیلویا. اگر کوئی کاہن کہہ رہا ہے کہ میں خداوند یسوع کا کاہن ہوں، اور وہ آپ کو یسوع کا کلچر نہیں دے رہا، اٹ مین وہ اس کا کاہن نہیں، وہ ڈیمونک کاہن ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس نے یسوع کی فوٹو لگائی ہوئی ہے پر دیندہ و تاگے ہے. آسمان پر دھاگے نہیں ملتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آسمان پر بجلیاں گرجیں اور آوازیں ہیں، آسمان پر پاور ہے. جب یہودا کا ببر گرجتا ہے، آسمان سے بجلیاں گرجے، تخت سے بجلیاں گرجے اور آوازیں نکلتی ہیں. ہاللیلویا. آج جب یہاں پر آپ کے لیے دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ خدا کا روح نے ٹچ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک میں بدرو ہو تو وہ گرے.
जब हायर पावर लोअर पावर को टच करती है, जब हायर विंड किसी चीज को टच करती है, वो लोग कदमों पर से खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। लिखा जब खुदा की हजूरी सुलेमान की हैकल में आई, काहिन अपने कदमों पर खड़े न रह सके। जब आप खुदा की हजूरी में गिरते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सब में जिन भूत चुड़ैलें हैं, नहीं, आपको खुदा की पावर, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का मसा टच कर रहा है। तो ये आसमान का कल्चर जमीन पर आ रहा है। ये वहां पर भी है। लिखा है मस्बे के सामने 4 जानदार हैं और 24 बुजुर्ग हैं, और वो जब देखते हैं कि बर्रे का जलाल देखते हैं, उसके चेहरे का जलाल देखते हैं, वो अपने ताज को उतार कर, तख्त उतर कर उसे सिजदा करते हैं। आप यहां सिजदा करते हैं, दुआ करते हुए अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने बेड के पास या मस्बे पर आकर आप रोते हैं, घुटने होते हैं, सिजदा करते हैं। कहां से आपने सीखा? मस्बे से, काहिन से। उसने आपको आसमान का कल्चर दिखाया। शायद आपने 24 बुजुर्गों के बारे में पढ़ा भी ना हो मुकाशफा की किताब में, पर आप घुटने होकर दुआ कर रहे होते हैं। किसने आपको सिखाया यह कल्चर? काहिन ने। तालियों की आवाज नहीं आ रही। तो काहिन आपको आसमान से कनेक्ट करता है। काहिन कहां से कनेक्ट करता है? अब इसी तरह जब कहानत छिन गई, कैन आई गो हायर, जब कहानत छिन गई और काहिन शैतान का काहिन बन गया, तो उसने शैतानी कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। शैतानी कल्चर क्या था? उन्होंने वहां पर बाबल का बुर्ज बनाया और उन्होंने कहा कि हम खुदा तक पहुंचेंगे, हम खुदा तक जाएंगे। इवल ऑल्टर बनाया, सिटीज बनाए, लिबास बनाए, कल्चर, सिविलाइजेशन। जब भी लिबास बनता है, गुफ्तगू बनती है, रस्में बनती हैं, आदतें बनती हैं, तो वो कहां से आ रही हैं? आसमान से। या तो उनको कोई खुदा का प्रीस्ट दे रहा है या डिमोनिक प्रीस्ट दे रहा है। आगे चल के हम देखते हैं सदम और अमूरा, वहां जाकर ज्यादा क्लियर होगा। सदम और अमूरा, वहां की कहानत डिमोनिक थी, वहां की कहानत डिमोनिक थी, वहां की कहानत डिमोनिक थी। और वो लोगों को कल्चर सिखा रहे हैं जो कि बाग एदन का कल्चर नहीं था। बाग एदन के अंदर आदम काहिन था और वहां पर कल्चर क्या था? आदम अकेला था। खुदा ने आदम की शादी किसी शेरनी से नहीं की, किसी बिल्ली कुत्ते से, किसी गधी से नहीं की। उसने उसके लिए उसका सूटेबल हेल्पर हवा को बनाया। पर सदूम और अमूरा में जहां डिमोनिक प्रीस्टहुड था, वहां उन्होंने एक ऐसा गंदा निजाम लेकर आया कि मर्द मर्द से बदफेली कर रहे हैं, औरतें औरतों से बदफेली कर रहे हैं, मर्द जानवरों से बदफेली कर रहे हैं। तो ये कल्चर कहां से आया? कहां से आया? ये डिमोनिक प्रीस्टहुड है, वो कल्चर बता रहा है। हालेलुया। आज अमेरिका में, यूरोप में, आप पूरे कॉन्टिनेंट पर देख लें, वहां पर एक्स, बल्कि अभी वो मौजूद है बाइडन, जो बाइडन, उसने क्या किया? लॉ पास कर दिया कि अमेरिका की रियासत में इजाजत है अपनी मर्जी से आप किसी मगरमच्छ से भी शादी कर सकते, किसी कुत्ती से भी शादी कर सकते, किसी घोड़ी से भी शादी कर सकते, मर्दों औरतों की भी इजाजत है, किसी कुत्ते से भी निकाह कर सकते हैं। और पास्टरों को उन्होंने फोर्स किया है, आपका चर्च शट डाउन हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर तुम्हें ऐसे निकाह को ना पढ़वाया। और हो रहा है, औरतें औरतों से निकाह कर रही हैं, मर्द मर्द से शादियां कर रहे हैं। पर उस सारे सिस्टम के पीछे, उस सारे कल्चर के पीछे, अब देखें कनेक्शन नजर आ गया कि कहानत जो यूरोप में काम कर रही है वो डेमोनिक है, डेमोनिक कल्चर दे रही है। और जो किंग है, जो बाइडन की तरह, वो पर साइन कर रहे हैं। इट मीन वो उस कहानत के अंडर है, वो वही कर रहे हैं जो काहिन कह रहा है। कौन सा? हम दुनिया का कामयाब मुल्क है, हम दुनिया की सुपर पावर है, सदुम और अमूरा की तरह। वहां पर डेमोनिक कल्चर है,
डेमोनिक सिस्टम है, डेमोनिक स्ट्रेटजी है, और खुदावंद उतरा, उसने कहा मैं सदोम और अमूरा को बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया। जो कोई भी कंट्री है, भले वो अमेरिका है, वो कुछ है, मेरी बात लिख लें, कलाम की बेस पर मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं, अगर उन्होंने अपने कल्चर को करेक्ट ना किया, खुदा खुद भस्म करने वाली आग लेकर लोगों को करेक्ट करेगा। तालियों की आवाज में कल्चर। इसी तरह फैमिलीज में देख लें, आज पाकिस्तान में बड़ा आम हो गया, गे बॉडी में मर्द है, कपड़े जनानियों के पहने हुए हैं, बॉडी के अंदर मर्द है, कपड़े जनानियों के पहने हुए। आपके मोहल्ले में नजर आए, आपके क्या है, और किसी ने उसको नहीं रोका, अलाउ कर दिया। इट मीन वो फैमिली डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर, वो फैमिली कभी सरफराज नहीं हो सकती। अगर वो सरफराज होगी तो उनको शैतानी काहिन अपनी चीजों से नवाजेगा, खुदा नहीं। ट्रांसजेंडर पैदा लड़के हुए हैं, बन छक्के गए, खुदा खुश नहीं है। वजूहात क्या है? कल्चर डिलूट हो गया, कहानत करप्ट हो गई है, और जो कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो डेमोनिक ऑल्टर है, डेमोनिक प्रीस्ट है। वो नजर नहीं आ रहा, पर वो आप उसके फलों में देख सकते हैं, उसके कामों से देख सकते हैं, क्योंकि आपको बाइबल की गिरफ्त है, बाइबल की समझ है। सदोम और अमूरा में डेमोनिक कहानत थी, और खुदा वहां मारने के लिए आया। तो खुदा का बंदा इब्राहिम उस वक्त खुदा का प्रीस्ट था, और उसकी मुलाकात जब मलकिसिदक से हुई, मलकिसिदक ने सिर्फ उसको बरकत नहीं दी, उसको बहुत सारी चीजें सिखाई। उसके बाद आप देखें, उसकी मुलाकात के बाद आप देखें, इब्राहिम जहां जहां गया है उसने ऑल्टर बनाई है और अपनी कहानत को प्रैक्टिस किया है। और उसके बाद बाइबल में, अभी टाइम नहीं है मैं आपको सारे हवाले लिखा हूं, घर जाकर खुद खोज कीजिएगा। एक जगह पर लिखा है कि मैं इब्राहिम से खुश हूं क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मेरा कल्चर सिखाएगा। तालियों की बात नहीं, इसीलिए इब्राहिम अमीर है, इसहाक अमीर है, और बनी इसराइल अमीर है। जो मर्जी वो कर ले, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को आसमान का, खुदा का, ऑल्टर का कल्चर, ऑल्टर पे कल्चर डाउनलोड होता है, लिबास, लैंग्वेज, हालेलुया। गालियां ऐसी वल्गर स्लैंग्स हैं, मैं माइक में नहीं बता सकता। यूरोपियन कल्चर में इतने गंदे स्लैंग्स हैं कि वो अपनी मां को भी गंदी गालियां देते हैं। वजूहात क्या है? डेमोनिक प्रीस्टहुड है, डेमोनिक लैंग्वेज है, डेमोनिक लिबास है, डेमोनिक कल्चर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ लोगों का जिनमें बदरू है उनको गुस्सा आ रहा है, हालेलुया, ये किधर मैसेज ले गए। अब यहीं पर बताते हैं, वहां पर सदोम अमोरा, वहां पर एक काहिन खड़ा हुआ है, उसने लूत को बचाया। जब खुदा, जोर से सुनिएगा, जब खुदा बर्बाद करने के लिए आता है, गुस्से से आता है, कहर से आता है, उसके कहर को जो ठंडा कर सकता है वो कोई और नहीं, वो काहिन है। लाब्रा का सेते रोको सोचो ब्रांडे। आपको अपनी कहानत का दूसरा फंक्शन बताऊं, जब आप पर, किसी फैमिली पर खुदा नाराज है, जो काहिन का गुस्सा ठंडा कर सकता है वो मूसा की तरह का काहिन है। वो खुदा को क्या कह रहा है? ऐ खुदावंद, तूने वादा किया था कि तूने वादे की सरजमीन में लेकर जाएगा जहां दूध और शहद की नदियां मानती हैं। तू इनको मिस्र से निकाल कर लाया, तू इनको बियाबानों में लेकर आया। अगर तूने इनको मिस्र में मार दिया तो गैर कौमें क्या बोलेंगे? लिखा खुदा ने अपने लोगों, अपनी सोच से तौबा की। लिखा गॉड रिपेंटेड। काहिन की ये पावर है, इवन खुदा को तौबा करवा रहा है। तालियों की बात। खुदा को तौबा की जरूरत नहीं है, पर बाइबल में लिखा है खुदा को तौबा की जरूरत नहीं है, पर बाइबल में लिखा गॉड रिपेंटेड। खुदा ने अपने ख्याल से सॉरी किया, उसने कहा सॉरी इब्राहिम, सॉरी मूसा, मैं नहीं मारूंगा।
اور جب सदूम और अमूरा को वहां की डेमोनिक कहानत को लेकर खुदा सजा देने के लिए आ रहा है। अभी तक अगर अमेरिका कायम है तो 2-4 रास्तबाज खादमों की वजह से है, जिसमें हम खुदा के खादम बेनी हिन का नाम देखते हैं, पापा मोरिस रोलो का नाम देखते हैं, और रॉबर्ट का नाम देखते हैं, विलियम ब्रैनम का नाम देखते हैं। ये वो जनरल्स हैं जिनकी दुआओं से वो अभी तक कायम है, वरना जो वहाँ कल्चर है, वो जो लैंग्वेज है, वो जो लिबास है, वो बर्बादी का है, और वो जो रुकी हुई है पनिशमेंट, वो काहिनों की वजह से है। इसलिए काहिनों की वैल्यू आपको यहाँ से सीखनी है। वो सदूम और अमूरा को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, वो निगोशिएशन कर रहा है, खुदा से बातचीत कर रहा है कि खुदावंद अगर 10 भी रास्तबाज हैं छोड़ दे, जो आपका छुटकारा करवा सकता है खुदा की सजा से, वो काहिन है। वो कौन है? मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, मैं नहीं जानता कौन सी बदी आपके घराने ने, आपके खानदान ने, आपकी ब्लड लाइन में की है। मैं आपके छुटकारे के लिए दुआ करता हूं, मैं आपके लिए रहम की अपील करता हूं, मैं आपके लिए मर्सी की अपील करता हूं, मैं आपके छुटकारे की अपील करता हूं, मैं आपके रहम की अपील करता हूं। हालेलुया। जब खुदा मारने आ रहा है तो काहिन खड़ा हो रहा है। इब्राहिम और खुदा ने लूत को बचा, इब्राहिम ने लूत को बचा लिया, उसकी फैमिली को, 8 मेंबर्स को बचा लिया। पर जब 5 मुल्कों के बादशाह आ रहे हैं, काहिन की दूसरी पावर देखें, जब दूसरे मुल्कों के बादशाह आ रहे हैं, बाइबल ने लिखा है कि सबसे पहली इंपार्टेशन इजाद करने वाला कोई और नहीं, पहली हीलिंग प्रेयर इजाद करने वाला इब्राहिम खुद है। बरकत का पाइनियर इब्राहिम खुद है, हीलिंग डिलीवरेंस का पाइनियर इब्राहिम खुद है। तो पहली इंपार्टेशन देने वाला इब्राहिम खुद है। उसके 319 या 318 नौकर है, आई थिंक सो, 319 या 18 के करीब उसके नौकर हैं। लिखा है इब्राहिम डिवाइड हिमसेल्फ। 5 मुल्कों के बादशाह आ रहे हैं और मुकाबले में सिर्फ 325 आदमी हैं, पर उनको नहीं पता काहिन को उसने बरकत दी है, तू कौमों का बाप है, तू कौमों का किसका? एक कौम का, कौमों का बाप है। तो वहां पर जो 5 मुल्कों के 5 कौमें उनसे लड़ने के लिए आई हैं, जो सदूम के 5 बादशाह थे, जो 5 डेमोनिक प्रिंस थे, उनसे लड़ने आ रहे हैं। 5 डेमोनिक प्रिंस जिन्हें शैतान ने उकसाया कि इब्राहिम को, लूत को पकड़ लो, और वो उनसे लड़ने के लिए गया। जब वो लड़ने के लिए गया, 325 आदमी ऐसे ऑपरेट हुए हैं जैसे 325 कौमें। तालियों की आवाज नहीं आई। क्या चीज है? जब काहिन अपने आप को डिवाइड करता है, अपनी इंपार्टेशन देता है, जो मैं अपने कलाम से आप पर दे रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप अकेले एक कौम को हैंडल कर सकते। आमीन के बाद 10 लोग होंगे। कोई एक दरबार पीर बाबे जादूगर की बात नहीं, मैं आपको बादशाहों की बता रहा हूं कि आप उनको, जब वो आपसे फाइट करेंगे, वो तहस नहस हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। काहिन की ये पावर है कि जो फाइट करता है और वो ईवल में है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। और इवन उनका माल इब्राहिम ने और उसके नौकरों ने लूट लिया और वो अमीर हो गए। जब जब वॉरफेयर आता है, अगर आप कहानत में हैं, प्रीस्टहुड में हैं, हर वॉरफेयर के बाद आप कंगाल नहीं, आप अमीर हो जाते हैं। मेरी लाइफ पर जब जब वॉरफेयर आया है, उसके बाद मेरा लेवल अगले लेवल से ऊंचा हो गया। इस सीजन में भी आप देखेंगे ये जो लेवल है, इससे अगला लेवल आने वाला है। आज के दिन के बाद कहानत का ऑयल आपके हेड पर एक्टिवेट हो, आपको अपनी डायमेंशन पता हो, आपको आपका फंक्शन पता हो। जो कोई आपसे वॉर कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इस वॉर की एंड पर फतह भी आपकी होगी और बरकत भी आपकी होगी। अपने साथ वाले को कहे, फतह भी तेरी होगी और बरकत भी तेरी होगी, और दुश्मन शर्मिंदा होंगे। एक रास्ते से आए हैं, 7 रास्तों से जाएंगे और जगह जगह अपना मुंह छुपाएंगे। शाउट फायर!
तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही, शाउट की आवाज नहीं आ रही। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आपका कहानत की डायमेंशन ओपन हो। मैं नहीं जानता कौन सी चीजें वॉरफेयर कर रही हैं, शिकस्त पाएं यीशु के नाम से, शिकस्त पाएं यीशु के नाम से। आपकी बरकत 100 गुनी हो, आपकी बरकत 100 गुनी हो, आपकी बरकत 100 गुनी हो। हालेलुया। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइएगा। मर्दे खुदा एलिया नबी भी और काहिन की डायमेंशन को भी समझता है। उसने देखा कि बनी इस्राएल कौम खुदा से दूर हो गई है। उसने सहीफों में स्टडी किया, उसे बड़ी फिक्र थी कि कैसे मैं खुदा के पास इन लोगों को वापस लेकर आऊं, कैसे ये बैक टू गॉड होंगे, कैसे ये बैक टू जीसस होंगे, कैसे ये वापस आएंगे यीशु के पास, खुदा के पास, यहोवा के पास, पाकरू के पास। ये लोग कैसे वापस आएंगे? तो उसने सहीफों में पढ़ा कि जब लोग खुदा से दूर हो जाएं, आसमान उनके लिए पीतल का हो जाता है। उसने कहा है हो जाता है। उसने प्रीस्ट होते हुए आसमान पीतल का कर दिया। 3.5 साल बारिश नहीं हुई। बाय फोर्स बाय फायर उनको यहोवा के करीब होना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ तरलों से मनादी नहीं कर सकते, आप डिमोन्स्ट्रेशन और पावर से मनादी कर सकते हैं। जब आपको अपने प्रीस्टहुड फंक्शन का पता है तो आपको उनके तरले डालने की जरूरत नहीं है, आप उनके डोर बंद कर सकते हैं कि सारे दरवाजे बंद होंगे। घूमता फिरता धक्के खाता आखिर तो यीशु के चरणों में होगा, यीशु के पांव में होगा। अगर आपका शौहर नहीं आ रहा, आपका बेटा नहीं आ रहा, तो ये कोई सजा, कोई कर्ज नहीं है। आप उसके डोर बंद कर दें। भटका भटका एट द एंड सारे दरवाजे दस्तक देकर, इवन मंदिर जाएगा जवाब नहीं होगा, इवन कहीं दरबार पर जाएगा जवाब नहीं होगा, आप उसके सारे डोर बंद कर सकते हैं। कहानत की वजह से मर्दे खुदा एलिया ने उनके सारे डोर बंद कर दिए। पानी कहीं से नहीं मिला। किसी देवी देवता ने कोई चमत्कार, कोई मौजज़ा, कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके लिए बारिश हो। एट द एंड उन्हें यहोवा के हुजूर आना पड़ा। और 3.5 साल के बाद उसने खुद डिक्लेयर किया, अखयाब को तौबा करवाई बादशाह को। उसने कहा बादशाह अपना रथ तैयार कर ले, मैंने कसरत की बारिश की आवाज सुनी है। आसमान का खुदा बारिश भेजने वाला। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आपको बरकतों की बारिश होने वाली है, आप पर मौजों की बारिश होने वाली है। प्रीस्ट की डायमेंशन क्या है? जो लोग खुदा से दूर हो गए हैं, आप उनको बाय फोर्स अरेस्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम विलियम ब्रैनम अजीम खादम है, मेरे बड़े फेवरेट खादम है। खुदा ने उन्हें रेवलेटोरी गिफ्ट दिया था और एक सर्विस में वो मनादी कर रहे थे और कुछ प्रेस रिपोर्टर्स ने देखा कि ब्रैनम जो है स्टेज मिरेकल करता है, मतलब लोगों को पैसे दिए होते हैं कि गवाहियां दे, नबूतों की गवाहियां दे, झूठा है। तो उन्होंने कहा कि 3 बंदे थे, एक ने कहा कि तूने जाकर कहना है कि मुझे कैंसर है और 2 साल से कैंसर है, और वो चाय पी रहे थे एक रेस्टोरेंट में और उन्होंने प्लान किया और वो संडे की सर्विस में चले गए। डॉक्टर विलियम ब्रैनम जब उन तीनों की बारी आई तो 2 आदमी उसको उठा के लाए, तीनों ही प्रेस रिपोर्टर थे। तीसरा रिपोर्टर सेंटर वाला बोला कि मुझे 2 साल से कैंसर है। उसने कहा खुदा के रूह ने मेरी आंखों को खोला है और मुझे फला रेस्टोरेंट दिखाया है, उसके ऊपर एक राउंड टेबल दिखाई है, उसके ऊपर 3 कुर्सियां लगी हुई हैं, सुबह का इतने बजे का टाइम है और 3 लोग चाय पी रहे हैं और वहां बैठकर प्लान कर रहे हैं कि तुमने जाकर कहना है कैंसर है। उसने कहा कैंसर नहीं था क्योंकि तूने खुदा के रूह को आजमाया, अब कैंसर है, अब कैंसर है। वो तीनों प्रेस रिपोर्टर घुटनों पर तरले करने लगे।
विलियम ब्रैनम के, प्लीज माफ कर दो। उसने कहा नहीं, मैंने बोला कैंसर है, कैंसर है, जाओ। जब तक तुम सही तरीके से इस कैंसर के जरिए लोगों को बताओगे नहीं कि खुदा कितना पावरफुल है, तब तक ये कैंसर नहीं जाएगा। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड रियल प्रीस्टहुड। कि मर्दे खुदा एलिया करमल की चोटी पर आसमान से आग मंगा रहा है, ऑल्टर पर आग आती है, और ऑल्टर पर सैक्रिफाइस काहिन के अलावा कोई नहीं देता। हालेलुया। साउल की बादशाहत, उसकी जिंदगी में बड़ी गलतियां हैं, पर सबसे बड़ी गलती तब है जब उसने सैमुअल की कहानत को रिजेक्ट कर दिया। लिखा है सैमुअल ने आने में देर की और उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इस्राएल का बादशाह हूं, मैं इस्राएल का बादशाह हूं, मैं सैक्रिफाइस दे देता हूं। और जब सैमुअल आया, उसने कहा तूने बहुत बड़ी गलती की, शायद तेरी बादशाह अब्दुल-आबाद होती, पर तेरी कहानत चली गई है। क्योंकि तख्त को बैकअप जो करती है वो कहानत है, वो ऑल्टर है। जब ऑल्टर की अब्यूज, मिसयूज होती है, तब तख्त चला जाता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आप कहानत की रिस्पेक्ट करें। इवन अपने अंदर की कहानत की, आप काहिन है, अपनी रिस्पेक्ट करें। काहिन क्या होता है? जो अपने आप को खुदा के लिए पाक करता है, अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करता है, अपने आप को खुदा के लिए सेपरेट करता है, अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करता है। उसकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, खुदा की मर्जी जानना, खुदा की तारीफ करना, खुदा की सताइश करना। हालेलुया। काहिन का पहला काम लोगों की खिदमत करना नहीं है, खुदा की खिदमत करना है। एक वेटर की तरह खुदा के हुजूर वेट करना है। जैसे एक लिखा जो खुदा का इंतजार करेंगे, इंग्लिश में लिखा ही हु वेट अपॉन द लॉर्ड, यानी खुदा के हुजूर वेटर की तरह टाइम स्पेंड करना है। अपनी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी पूछनी है, उसका प्लान पूछना है, उसकी डिजायर पूछनी है, उसका हार्ट पूछना है, उसकी फीलिंग पूछनी है, उसका एजेंडा पूछना है। ये काहिन का काम है। हालेलुया। लिस्टों की थदियां लेकर जाना नहीं है, ये सेकंड लेवल पर है। पर उससे पहले वो कौम के लिए खुदा का मिशन, खुदा का प्लान पूछता है। तो आप काहिन है। आप, ये जो सारे रोल मैं बता रहा हूं, ये आपके हैं। जब आप अपने अंदर के काहिन को जगाएंगे, आपके अंदर का प्रीस्ट जागेगा, तब आपकी किंगशिप बहाल होगी। आमीन की आवाज नहीं आ रही? आमीन की आवाज नहीं आ रही? आपके अंदर का काहिन जागने वाला है, आपके ऊपर कहानत का ऑयल एक्टिवेट होने वाला है यीशु के नाम से। तो कोई भी तख्त पर बैठा है, आप उसका तख्त उलट सकते हैं कहानत की वजह से। सैमुअल ने साउल का तख्त उलट दिया जब उसने उसकी खिदमत की, डिसरिप्यूट की। हालेलुया। नाइजीरिया के अंदर सर्टेन मैन ऑफ गॉड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। नाइजीरिया के वजीर आजम ने उनसे मिसबिहेव किया। उसने कहा इफ आई बी द मैन ऑफ गॉड, अगर मैं मर्दे खुदा हूं, 3 दिन के अंदर अगर तू अपना कानून जो तूने दिया है वापस ना ले, तो पागल हो जाए। और हिस्ट्री देख लें, उस मैन ऑफ गॉड ने जो वर्ड बोले हैं, वजीर आजम पागल हो गए। तालियों की आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, आप कहानत की इस हाइट को, इस डायमेंशन को टच करें यीशु के नाम से। इस डायमेंशन को टच करें यीशु के नाम से। इस डायमेंशन को टच करें यीशु के नाम से। हालेलुया। मोआब का बादशाह शैतानी कहानत को समझता है, इसीलिए जब मोआब के मैदानों में बनी इस्राएल कौम ने खेमे लगाए हैं, तो वो अपने लिए बलाम को बुला रहा है कि तू मेरे लिए शैतानी काहिन का रोल अदा कर, मैं तुझे प्रॉपरली पे करूंगा। उसने 21 मजबे बनाए हैं, हर मजबे के ऊपर 7 जानवर रखे हैं। हालेलुया। 7 जानवर रखे।
اور اس کے بعد اس نے اسے کہا کہ تو بنی اسرائیل پر قرض کر، لعنت کر۔ گنتی کی کتاب 22 باب 23 باب آپ گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر دیکھیں کہ بادشاہ اپنی فوج لے کر نہیں جا رہا۔ اوکے، اگر وہ تیرے بارڈر میں آ گئے ہیں تو تو ان کو اپنی فوج سے نکال دے، اپنی پولیس سے نکال دے، اپنی سیکیورٹی اداروں سے نکال دے۔ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تو بلک بادشاہ بلام کو کہہ رہا ہے تو ان مذبے پر، ان پر لعنت کر۔ اسٹرینتھ، طاقت شیطانی پریسٹہوڈ کی، شیطانی مذبے میں ہے، شیطانی سیکریفائس میں ہے، اور ان کی کرسز میں ہے، بددعاؤں میں ہے۔ اور اسی طرح آپ کی پاور، آپ کی آلٹر، آپ کے کاہن اور آپ کے ہدیے میں ہے۔ ہاللیلویا۔ جب آلٹر پر آپ ہدیہ رکھتے ہیں اور کاہن آپ کے لیے ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ڈکلیریشن آسمان اسٹیبلش کرتا ہے، کیونکہ کاہن روحانی عالم میں لیجسلیٹر ہے، اور وہ نہ صرف لیجسلیٹر ہے، قانون بناتا ہے، بلکہ قانون کو انفورس کرواتا ہے، انفورس کرواتا ہے، انفورس کرواتا ہے، لاگو کرواتا ہے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، جو کوئی بھی بات اس آلٹر پر آپ کی لائف پر بولی گئی ہے، پوری ہو یسوع کے نام سے، پوری ہو یسوع کے نام سے۔ شیطانی مذبے سے شیطانی کاہن جب آپ کو بد دعا دیتا ہے، آپ ناکام اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں پہلے تیر تلوار سے ان کے ساتھ نہیں لڑوں گا، تو ان پر لعنت کر، تو ان پر قرض کر۔ قرض آپ کو ویک کر دیتا ہے، آپ کی میرج کو، آپ کے بزنس کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی سٹڈی کو، آپ کے کاروبار کو ویک کر دیتا ہے۔ میرج کھڑی نہیں ہوتی، بزنس کھڑا نہیں ہوتا، ہیلتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ جس چیز پر قرض کیا جائے اس کی پاور ڈرین ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا میں فوجیں بعد میں لے کر جاؤں گا۔ ذرا امیجن کریں کہ اس کے بارڈر میں انہوں نے تمبو لگا لیے، خیمے لگا لیے، تو وہ لڑنے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ پہلے لعنت کر، بعد میں فوج لے کر جاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے بعد میں فوج لے کر جاؤں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شیطانی آلٹر کی، شیطانی پریسٹ کی کیا پاور ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بائبل میں ایک اور سلاطین کی کتاب میں ہم سٹوری دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے ساتھ، مواب کے بادشاہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، اور وہ جنگ آلموسٹ اسرائیل جیت گیا ہے، اور جنگ جیتنے کی نبوت ایلیا نے نہیں، جس پر دوگنا مسا ہے، الیشا نے کی ہے۔ وہ بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا، یعنی ایول پریسٹ تھا۔ اس نے دیوار پر اپنے بیٹے کو بلی دے دیا۔ جیسے اس نے بلی دیا ہے، لکھا دیر واز اے گریٹ ڈگنیشن، خدا بڑے قہر میں اسرائیلیوں پر گرجا ہے، اور وہ جنگ ہار گئے۔ جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے ہیں، نبوت کے باوجود وہ ہار گئے ہیں۔ نبوت کو جو چیز بلاک کرتی ہے، پریئر کو جو چیز بلاک کرتی ہے، وہ شیطانی پریسٹ ہے، شیطانی آلٹر ہے۔ پر ایون جب قرض کیا جائے، ان کے قرض کو جو ریورس کر سکتا ہے وہ آپ کا پریسٹ، آپ کی آلٹر اور آپ کا سیکریفائس ہے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو 430 سال کی غلامی سے نکالا ہے۔ جب وہ مصر سے نکل رہے تھے 430 سال کی غلامی کے بعد، تو بحر کلزم ان کے لیے رکاوٹ بنا ہے۔ تو موسیٰ کے ہاتھ میں آسا تھا، اس نے آسا خدا کی کمانڈ کے مطابق کیا، اور بحر کلزم کے ٹکڑے ہو گئے اور راستہ بن گیا۔ پر جب وہ بیابان میں تھے، یہاں وہ مصر میں تھے، اور وہاں وہ بحر کلزم پار کر کے بیابان میں تھے۔ بیابان میں بھی 40 سال وہ رہے ہیں، پر جب بیابان سے وہ نکل رہے ہیں، وعدے کی سرزمین میں جا رہے ہیں، پھر ایک اور دریا ان کے راستے میں آ گیا، اور اس دریا کا نام یردن تھا۔ کیا تھا؟ آپ نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، یسوع کو قبول کر لیا ہے، آپ اپنے گناہ سے، اپنے مصر سے باہر آ گئے۔ آمین کی آواز نہیں آ رہی؟
पर आप अभी तक अपनी जिंदगी में बियाबान में भटक रहे हैं। आप अपनी बरकत में एंटर होने वाले हैं। आप अपने मौजे को हासिल करने वाले हैं। आप अपनी कार को, अपनी मैरिज को, अपने बच्चे को, अपने घर को रिसीव करने वाले हैं। अब गौर से सुनिएगा, उनकी बरकतें उन्हें उस पार नजर आ रही हैं। उनका घर, उनकी सवारी, उनके बच्चे, उनकी खुशहाली, उनके खेत, दूध और शहद की नदियां, उनकी फतह, उनकी कामयाबी, उनकी दौलत, उनका सोना, हर चीज उन्हें नजर आ रही है। पर रास्ते में यरदन है। अपने साथ वाले को कहे यरदन है। और अब मूसा नहीं है और अब आसा भी नहीं है। बाइबल बयान करती है कि बहरे कुलजम मूसा ने 2 टुकड़े किया आसे के साथ, पर यरदन काहिनों के पांव रखने से ढेर हो गया। वादे की सरजमीन में लेकर गए हैं। लिखा है काहिनों ने अपने कंधों पर अहद का संदूक उठाया। यशवा ने कमांड की, सबसे पहले काहिन आगे जाएंगे, 12 पत्थर उठाएंगे और अपना पांव पानी के अंदर रखेंगे। जैसे काहिनों ने पांव पानी के अंदर रखा, यरदन ढेर हो गया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं। अपने सर पर हाथ रखिएगा। मुकाशफा 1:6 और मुकाशफा 5:10 के मुताबिक आप शाही काहिनों का फिरका है। फिरका है कि नहीं है? शाही काहिन है कि नहीं है? जैसे ही आप कदम उठाएं, मैं नहीं जानता कौन सा यरदन आप फेस कर रहे हैं, वो यरदन आपकी लाइफ में है जो आपकी बरकत, आपकी तरक्की के रास्ते में जो रुकावट है। अब वो कुलजम नहीं, वो यरदन है। यरदन आसे को नहीं मानता, यरदन लाठी को नहीं मानता, यरदन टुकड़े होता है कहानत के आगे। जैसे आप कदम बढ़ाएं, जो कोई यरदन है टुकड़े होने वाला। आमीन की आवाज नहीं आई। अपना एक कदम आगे बढ़ाएगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा। जैसे आप कदम बढ़ा रहे हैं, यरदन टुकड़े हो रहा है। हर वो रुकावट जो आपको आपके प्रॉमिस लैंड में, आपके दूध और शहद की जमीन पर, आपकी बरकत की जगह पर, आपकी तरक्की की जगह पर, आपके नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोक रही है, वो टुकड़े हो रहा है। अगला कदम बढ़ाएं। काहिनों कदम बढ़ाओ। मैं आपको कह रहा हूं, काहिनों कदम बढ़ाओ। आमीन की आवाज नहीं आ रही। जैसे जैसे आप कदम बढ़ा रहे हैं, यरदन के टुकड़े होते जा रहे हैं। यरदन का पानी ढेर बनता जा रहा है। पानी ढेर तब बनता है जब वो फ्रीज हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है। बगैर एसी के, बगैर रेफ्रिजरेटर के, बगैर फ्रिज के, लिखा यरदन का पानी ढेर बन गया। तो ढेर तब बनता है जो मैंने देखा है जब पानी फ्रीज होता है। तो कहने की बात क्या है कि दुश्मन, रुकावटें सीज और फ्रीज होने वाली। कदम बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं। दुश्मन और रुकावटें सीज और फ्रीज होने वाली है। कदम बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं। दुश्मन और रुकावटें सीज और फ्रीज हो रही। खुदा आपके पैरों को एम्पावर कर रहा है। आप अपनी बरकत को टच करेंगे। आपने हाथों को देखे, आप अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। आप अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। अपनी आंखों को टच करिए, आपकी आंखें आपकी बरकत को देखेंगी। आपके पांव आपकी बरकत में एंटर होंगे। आप अपनी जुबान को, मुंह को टच कीजिएगा, आपकी जुबान आपकी बरकत को एंजॉय करेगी, बरकत को टेस्ट करेगी, बरकत को टेस्ट करेगी। अपने कानों को टच करें, आपके कान आपकी बरकत की खुशखबरी को सुनेंगे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जिस किसी ने भी आपके रास्ते में रुकावट डाली है, आप काहिन का सिर्फ पांव हथियार, आवाज तो दूर की बात है। यरू की दीवारें, हम बार बार लास्ट पॉइंट और मैं क्लोज करूंगा, यहीं पर खड़े रहेगा अपनी जगह पर। यरू की दीवारें, हम गीत गाते हैं, चक्कर लगाएंगे 6 बार, 7वें दिन चक्कर लगाएंगे, नारा लगाएंगे। आपको पता है पूरा चैप्टर जाकर दोबारा पढ़िएगा, उनको जो लीड कर रहे थे वो यशवा नहीं, वो काहिन थे। हालेलुया।
नरसिंगा काहिन बजाते हैं, आम लोग नहीं। तो आप न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए अहद के अंदर यीशु के ब्लड से, यीशु के कफारे से आप सब बादशाह हैं और काहिन हैं। जब तक आपकी कहानत नहीं जागेगी, आपकी बादशाहत नहीं आएगी। आपकी कहानत को मैं जगाने आया हूं, आपकी कहानत को मैं एक्टिवेट करने वाला हूं। जो ऑयल आसमान पर आपके नाम का पड़ा है, वो ऑयल आपके सर में उंडेल रहा है। जो कोई भी यरू की दीवार आपको गिराए हुए है, एज अ प्रीस्ट जब आप ये गीत गाएंगे और चक्कर लगाएंगे, हर एक यरू की दीवार गिरने वाली है, यरू की दीवार गिरने वाली है। कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है, चलें हवाला पढ़ते हैं और उसके बाद गीत गाएंगे और इसी जगह खड़े रहेंगे। वाला दोबारा पढ़ेगा, यशवा 6। और यरू बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं बादशाह तेरे हाथ में कर दिए, ओके, तेरे हाथ में कर दिया। तो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगीर गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे। कौन जा रहे हैं? कौन लीड कर रहे हैं? कौन लीड कर रहे हैं? आप क्या है? क्या पावर है? पावर पता चली आपको? यरदन के टुकड़े किसने किए हैं और यरू की दीवारें किसने गिराई हैं? मेन दिन बताए गए हैं, 6 दिन तक तुम ऐसे करना। 7 काहिन, कितने कितने काहिन? तुमने शोर मचाना है। अब आज आप बिहेव एज अ काहिन करेंगे, एज अ ऑडियंस नहीं है। आमीन की आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। आपकी आवाज में, आपके नरसिंगे में कितनी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, हर एक यरदन टुकड़े हो जाए। जब आप 7 लोगों का हाथ पड़े हुए मार्च कर रहे हैं अपनी जगह पर ही, राउंड राउंड, अपनी जगह पर ही राउंड राउंड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, हर एक यरू की दीवार गिर जाए, हर एक यरू की दीवार गिर जाए। आज के दिन के बाद मैं आपकी आइडेंटिटी जो कलाम में छुपी हुई है आप पर आश्कारा करने वाला हूं। जब किसी का आईडी कार्ड चला जाए या याददाश्त चला जाए, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैंने कलाम से आपको आपकी आइडेंटिटी बताई है, आपकी शनाख्त बताई है कि सिर्फ आप खुदा के बेटे बेटियां नहीं, आप काहिन हैं और आप बादशाह हैं। आपकी बादशाहत नहीं आ सकती जब तक आपकी कहानत नहीं जागेगी। कहानत नहीं जागेगी, आप आसमान से कनेक्ट नहीं होंगे, आसमान से कनेक्ट नहीं होंगे, फरिश्ते आपके लिए जंग नहीं करेंगे और आप वॉरफेयर नहीं जीतेंगे। जो कोई भी वॉरफेयर आप फेस कर रहे हैं, आप जीत जाए यीशु के नाम से। हर एक रुकावट दूर हो जाए यीशु के नाम से। भले वो यरू की दीवार की शक्ल में है, भले वो यरदन की शक्ल में है, जो भी ये है वो गिरने वाला है, वो टुकड़े होने वाला है। आपकी आइडेंटिटी एज अ प्रीस्ट मैं एक्टिवेट कर देता हूं। काला बोरे बे शाकाराबा से ब्रियांडा।